بسم اللہ. السلام شکریہ جناب محسن صاحب. میں ان کو محسن طب کہتا ہوں, نام ان کا محسن دہلوی خاندان کے چشم چراغ. آج کی اس سیمینار اور سی ایم ای کے چیف گیسٹ پروفیسر عاصم علی خان صاحب, ایڈوائزر یونانی منسٹری آف فائنانس اینڈ ڈائریکٹر جنرل CCIU, پروفیسر عارف رضوی صاحب, ون آف دا انڈیاز بیسٹ سرجنس, پریکٹسائزنگ سرجنس, ڈاکٹر اکرم صاحب, ڈاکٹر مینہار صاحب, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سمیر ہاسپٹل, CCREM کے آئے ہوئے بہت سائنٹسٹ, انڈسٹری کے, یونانی انڈسٹری کے مالکان اور آن لائن بہت سارے حضرات جن کو میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن شاید وہ مجھے دیکھ پا رہے ہیں. ان میں سے پروفیسر لطیف صاحب آج کے اسپیکر ہیں, ڈاکٹر حمید اللہ NIUM وہ بھی آج کے اسپیکر ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے یونانی کے اسٹیک ہولڈرس ہندوستان اور ہندوستان سے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ورلڈ یونانی فاؤنڈیشن کا, جو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر یونانی کو انٹروڈیوس کرا پچھلے کافی سالوں سے. دوسری ایک اور جماعت محسن صاحب نے کھڑی کی ہے اونٹیما کے نام سے, یونانی ڈرگ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن, بہت اچھا کام کرتی ہے. اور اس میں سے سب اچھا کام یہ ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا جو رول ہے ان نمایاں ہم جانتے ہیں, چاہے یونانی انڈسٹری ہو یا اور بھی. جتنا بھی انوویشن اور جتنا بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ دونوں کے اشتراک سے ہی باہر آ رہا ہے. آپ جتنا بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھ رہے ہیں وہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں اور ان سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے عوام کے, جو بھی کچھ کر رہے ہیں ہیومن کائنڈ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس معنی میں یوٹمان قابل ستائش ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ وقتاً فوقتاً. اور اس کی ایک مثال آج ہے کہ انہوں نے ایک نیشنل سیمینار رکھا ہے اور CME بھی ہے ساتھ میں, اور ایسے ٹاپک پہ رکھا ہے جو کہ ٹاپیکل ٹاپک ہے, ڈوزز فار. ابھی محسن صاحب نے چھوٹا سا پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھا. شروعات انہوں نے کی کہ آج سے کئی سال قبل ایک دن میرے ڈپارٹمنٹ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے خمیرے کا ایک سیمپل دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بنایا ہے. آج کل چونکہ شوگر کا ایک اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ شوگر فری ہونا چاہیے, نہ صرف دوائیں بلکہ مٹھائی بھی ہونا چاہیے اور بھی چیزیں ہونا چاہیے. اس طرح کا چل رہا ہے آج کل کا ماحول چل رہا ہے کہ شوگر فری ماحول کو کیسے یونانی میں اڈاپٹ کریں. تو یہ خمیرہ میں نے دیکھا, اس کو ٹیسٹ بھی کیا, پھر 2-4 اور انہوں نے مجھے شیشیاں دی, وہ میں خود لے گیا. میں نے کہا سب سے پہلے میں خود پہ استعمال کروں گا, پھر میں نے اپنی فیملی بچوں سب کو دیا. سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی یہ بہت اچھا ہے, ٹیسٹ وائز بھی, کنٹینٹ وائز بھی. پھر کچھ دن کے بعد بتایا انہوں نے کہ ہم نے لانچ کر دیا, بہت خوشی ہوئی. خاص طور سے چونکہ میں اسی کا طالب علم ہوں سیدلا کا, اور پچھلے 11 سال سے میں پوسٹ گریجویشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوں, اور وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ سارا ڈوزز پہ ہی کام, ڈوزز فارم پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں. چاہے وہ مرہم کو نینو جیل بنانا ہو, چاہے وہ سفوک کو جیل بنانا ہو, چاہے وہ مرہم زنگار کو سرجیکل میٹیریل بنانا ہو, چاہے وہ مرہم داخلیون کو ویجائنل ٹیبلٹ بنانا ہو, چاہے وہ ماؤ لہم کو کیسے کنورٹ کیا جائے. پروٹین کا ہمارے پاس بہت بڑا ایک سورس ہے,
और आए दिन उसमें फंगस लग जाती है, ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी या शेल्फ लाइफ नहीं है, उसको हमने पाउडर में बदल दिया। और जब पाउडर में हमने बदला तो बड़ी हमें बहुत खुशी हुई, और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसके अंदर ग्लूटाथियोन जो मेन प्रोटीन का इंडिकेटर है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर मिला, तो हमने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चे एमडी में कर रहे हैं और पब्लिश भी हो रहे हैं। चूँकि गवर्नमेंट सेटअप है हमारा, हम लोग सिर्फ एक एमडी के तौर पर उस काम को करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं करते उसको। ये ड्रॉबैक है हमारा। हम इसको करने जा रहे हैं। हम इस तरह से जैसे एक प्लेटफॉर्म आज दिया है, आज से 2 साल कब यहाँ पे एथनो फार्माकोलॉजी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, वहीं पे हमारे कुछ बच्चों ने अपना काम प्रेजेंट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये काम आप कैसे इन आइसोलेशन कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, आइसोलेशन नहीं है, हम लोग इसको पब्लिश भी करेंगे। और इंडस्ट्री के साथ हमारा कॉन्टैक्ट भी है, जब भी वो लोग आते हैं तो अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो हम कंसल्टेंसी नहीं कर सकते, लेकिन अनऑफिशियली हम उनको बताते रहते हैं कि आप ये करिए वो करिए। और उसमें अभी मोहसिन साहब ने बताया कि किस तरह से हमारी तमामी दवाएं हैं, उनको कैसे कैप्सूल फॉर्म में लाए हैं, कैसे टैबलेट फॉर्म में लाए हैं, और ये ज़रूरत भी है, इसको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर करूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी लेक्चर भी सुने हैं आपने। इस वक्त जो कोविड का दौर चल रहा है, अभी बीच का एक थोड़ा सा हमें गैप मिला है, ये दूसरी वेव की बात क्या है अभी चल रही है, 10 स्टेट्स के भी आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, और शायद इंतजार भी है लोगों को कि शायद तीसरी वेव ना आए, खुदा ना करे तीसरी वेव, लेकिन फिर भी तैयारी चल रही है लोगों की उससे कैसे मुकाबला करना। इस जो सेकेंड वेव आई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आई है, वो लैंसेट में भी स्टडी आई है कि 200 सिम्टम्स आए हैं जिन लोगों को कोविड हो चुका है, 200, आउट ऑफ विच 66 आर वेरी कॉमन, और उसमें भी वो सारे हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल वाले। डिजीज तो आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया मरीज का, आपने कोरोना को कंट्रोल करके कोविड को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने इंसानी जिस्म के अंदर जो हंगामा किया है, टॉप टू बॉटम हर जगह, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंटेन करें, कैसे मैनेज करें, ये मॉडर्न मेडिसिन के सामने चैलेंज है। तो हमें भी इस चैलेंज को कबूल करना है, क्योंकि ये हमारा अपना यूएसपी है, हमारा एक एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं। जो नुकसान वायरस ने किया है उसको हम कैसे ठीक करें, वहाँ यूनानी का रोल सामने है। तो इसके लिए जो इंडस्ट्री हमारी को तैयार रहे और देखे कि कौन कौन से ऐसे हमारे फार्मुलेशंस हैं जो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे नींद नहीं आ रही, जिन लोगों को कोविड हुआ है आप लोग सब जानते होंगे, उनको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया। यूनानी के अंदर न सिर्फ खाने वाली, लगाने वाली बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास रोगन हैं जिनको भी लगा सकते, जिससे नींद आती है। रोगन चाहे नीलो फरो कद्दू है, जो बहुत सारे हैं इस तरह के, तो दोनों तरह के हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे, मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा सफर हुई है, जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो अब हमें इस तरफ देखना है, और ये सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत है कि हम वक्त के साथ चलें, तभी हमारी पैथी को लोग समझेंगे और जानेंगे भी उसको। अभी जो फर्स्ट वेव के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट हुआ है कि जो भारत सरकार ने, आसिम साहब और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने जो काढ़ा, तो यूनानी का एक जो शादा या आयुर्वेद का काढ़ा, नीर सिद्धा का, वो इतना पॉपुलर हुआ कि हर इंडस्ट्री ने उससे काफ़ी प्रॉफिट कमाया। वो दौर बहुत रिसेशन का था, नीचे जा रही थी इकोनॉमी, उसमें हमारी आयुष इंडस्ट्री ने 15 से 20% रिकॉर्ड, CAGR की रिकॉर्ड है कि उसमें इतने परसेंट इजाफा हो गया उसके अंदर उनकी बिजनेस में। तो ये भी एक हमारे सामने चैलेंज था कि हम कैसे उनको सेकेंड वेव में मौका ही नहीं दिया वायरस ने, वो तो उसके तो सांस लेना दूबर हो गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो वहाँ यूनानी का कोई इसको किसी सिस्टम का नहीं था, किसी सिस्टम का नहीं था, बहुत ज़बरदस्त सुनामी थी वो, तो खैर निकल गई और अल्लाह ने करे दोबारा। लेकिन वो साइड इफेक्ट्स हैं, वो पोस्ट कोविड नहीं है, लॉन्ग कोविड है। जो नई टर्म दी है, पोस्ट कोविड नहीं है, उसको कह रहे हैं लॉन्ग कोविड, लंबा जाएगा, उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो लंबे जाएंगे। और उसको काउंटर करने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं यूनानी का तालिब इल्म हूँ, मैं समझता हूँ यूनानी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है। आप लोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री वाले इसको कबूल कर रहे हैं,
अभी जैसे दिखाया है कि उसमें एक शुगर का भी फैक्टर है। एक नॉर्मल कोविड के पेशेंट की 2 टाइम्स 3 टाइम्स शुगर बढ़ी है, और जिनको शुगर थी वो तो आपको पता ही है। सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है कोविड में वो कोमॉर्बिडिटी में, खास तौर से सबसे अगर डेटा इकट्ठा किया जाए तो डायबिटिक पेशेंट थे जिनको कोविड हुई और वो उसमें हरा गए। तो एक चैलेंज था वो आपने अभी देखा कि वो हमने शुगर फ्री से उसको काफ़ी कुछ अपनी दवाओं को मैनेज कर लिया, और जो रूटीन की दवाएं हमारी, चाहे वो खमीर जात हैं, जवारिशात हैं, माजूना, उन सबको हम शुगर फ्री करके पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा कैप्सूल में दे सकते हैं, जैसे कि आपके सामने दवीदुल बर्द है, लोग बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं, लोग उनसे हमें फीडबैक मिलता रहता है, वो बता रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा है वो, और वो भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारी माजून काम करती है। तो कहने का ये है कि इस वक्त एकेडमिया और इंडस्ट्री को एक दूसरे की अशद जरूरत, दोनों मिलकर काम करें, और फिर किसके लिए? आवाम के लिए, जो मरीज हैं उनके लिए काम करें, जिससे कि हमारी यूनानी सिस्टम बहुत आगे बढ़े, बहुत गुंजाइश है इसके लिए। और ये हमेशा से रहा है, यूनानी कोई आज नहीं है। इससे पहले भी एक दौर आया था, आज से 100 साल पहले, हकीम अजमल खान अलैहि रहमा जैसे लोग थे, उन्होंने फाइट किया। उस वक्त तो दूसरी गवर्नमेंट थी, और जब जाके बचाया इसको। आज भी कुछ ऐसे हालात हैं, लेकिन मुझे कोई नाउम्मीदी नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए हम लोगों को नाउम्मीदी। अभी आरिफ साहब ने अपने वेलकम एड्रेस में उन सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे आपके सामने रखा, चाहे NCICM को, या और भी कोई इस तरह की सर्जरी का भी रखा, चूंकि वो सर्जरी उनके हार्ट के करीब है, प्रैक्टिसाइजिंग सर्जन है, नेचुरली उनको ज़्यादा उसका एहसास है। तो होगा देर सवेर, हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, और ये नहीं कि हम उस मायूसी में कुछ ना करें। मेरा कहने का मकसद ये, वो भी हो रहा है, वो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर की सुनामी रही हो या जो भी लगे हैं लोग उसमें लगे हैं, और वो भी इंशाल्लाह होगा। हमारे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, आसिम साहब हैं, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम उस मसले में फंस के कुछ ना करें, हमें कुछ और दूसरे अपनी हमें कॉम्पिटेंसी को शो करना है। इस वक्त चैलेंज है, और इस वक्त दुनिया उसी को मानती है। अब इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, कौन है। अब ताल्लुक इससे है कि आप क्या कर सकते हैं। कोई इससे सरोकार नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, लोगों को कितनी आपकी जरूरत है, ये आपको करके दिखाना है। ये इस वक्त से तो मेरी आप सब हजरात से मोहतबाना गुजारिश है कि यूनानी की जो भी हमारा पोटेंशियल है यूनानी का, उसको अपने अपने लेवल पे, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, या क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ पे हमें यूनानी को रिप्रेजेंट करना है और यूनानी के पोटेंशियल को बाहर निकाल के लाना है। इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा है, वक्त हमारा है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे